تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یا یہاں پر الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس میں جزم بھی ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ فَأَمْكَرَ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے تو اسے جلد پڑھنا۔ منہم نون میں یہاں پر اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ واللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقے میں سے ہا ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کی دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو طول کہتے ہیں، اور 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو توسط کہتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ علیم حکیم۔ ان نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ لدینہ میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ نون میں بھی واو مدہ ہے۔ ہا میں الف مدہ ہے، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی واو مدہ ہے۔ جیم میں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، دو میں واو مدہ ہے۔ بی اموالہم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، واو میں الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ فی میں یا مدہ ہے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر واو ساکن کے بعد یہ واو مشدد آ رہا ہے، تو یہ واو جو ہے اس واو کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، تو اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اسے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ وَنَصَرُ صاد میں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بعضهم ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ او میں واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لیا میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بعض یہاں پر وقف کریں گے تو ضاد دو زیر کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو سکون سے بدل کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض
वल्लदीना यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हमजा में खड़ा ज़बर है, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। नून में वाव मद्दा है। वलम के मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है। हा में अलिफ मद्दा है, रॉ के ऊपर पेश है, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव मद्दा है। माँ में अलिफ मद्दा है। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, हुरूफ यूमिन में से मीम साकिन के बाद मीम है, तो ये मीम मीम के साथ मुदगम हो जाएगा, इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद वाव है, हुरूफ यूमिन में से, तो नून वाव के साथ मुदगम हो जाएगा और इसको गुन्ना के साथ में पढ़ते हैं, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। वला में जो मद है मद्दे मुत्तसिल, वला में जो मद है अलिफ मद, वला में अलिफ मद्दा है और यहाँ पर मीम साकिन के बाद फिर मीम है, तो यहाँ पर भी इदगाम शफ़वी होगा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। नून में इख्फा हो रहा है। शई में यालीन है, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर हमज़ा के नीचे जो 2 ज़ेर की तनवीन है, इसमें इज़हार हक़ीक़ी हो रहा है, से जल्द पढ़ना है। हत्ता में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे। युहा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है, तो इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे इस तरह से। वल्लज़ीन आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन नून में इख्फा हो रहा है। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ को ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है। फिद्दीनी, यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शमसी के शुरू में, दाल हुरूफ शमसी है, इसके शुरू में है, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़अलैकुम, यहाँ पर यालीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर नून मुशद्दद है तो गुन्ना होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अलिफ लाम हुरूफ शमसी के शुरू में, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ को ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। इल्ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अला में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। वाव लीन है, यहाँ पर इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद बा है, तो तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। बई में या लीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पड़ेगा। मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, से जल्द पढ़ना। वबई, यहाँ पर भी या में या लीन हो रहा है, इससे भी नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, तो इदगाम शफ़वी होगा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मीम में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सा में अलिफ मद्दा है और यहाँ पर वक्फ़ करेगा तो काफ ये जो है कि हरकत ये सुकून से बदल जाएगा, तो फिर काफ में कलकला होगा और कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से, तो कौफ को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वइन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़। वल्लाहु, अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। बीमा में अलिफ मद्दा है, तामलून लू में वाव मद्दा है। बसीर सौद हुरूफ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर देखिए या मद्दा है। अगर यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो रा की 2 पेश की तनवीन जो है वो सुकून से बदल जाएगा, तो फिर रा को बारीक पढ़ेंगे और मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वल्लज़ीना, यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ को ऊपर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बाअदुहुम ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा। औ में वाव लीन है। या में यहाँ पर जो मद, ये मद्दे मुत्तसिल है। ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे इस तरह से। वल्लज़ीना कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। इल्ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तफ़अलू लू में वाव मद्दा है। तकुन नून में इख्फा हो रहा है और यहाँ पर ता में भी इख्फा हो रहा है। फिल अर्दी रा को पुर पढ़ेंगे। ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। वफ़सा सा में सीन में अलिफ मद्दा है और दाल की तनवीन में इख्फा हो रहा है। कबीर यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो रा को बारीक पढ़ेंगे और मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ित्नतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर।
वल्लदीन यहाँ पर या मद्दा है, हमसा में खड़ा ज़बर है, नू में वाव मद्दा है, वहा में अलिफ मद्दा है, राकू पर पेश है, राकू पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वाव मद्दा है। वजाहदू जिम में खड़ा ज़बर है, या अलिफ मद्दा की तरह होता है, दू में वाव मद्दा है, फी में भी या मद्दा है, सभी में भी या मद्दा है। अल्लाह के लाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है, अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। वल्लदीन यहाँ पर या मद्दा है, हमसा में खड़ा ज़बर है, या अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर भी जो इदगाम हो रहा है, इदगाम मिसलैन हो रहा है। व नसरू सौद उर्फ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रौकू पर पेश है, रौकू भी पुर पढ़ेंगे। ये जो मद है मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पर वाव में कोई हरकत नहीं है, वाव पर नहीं पढ़ना है। लाम में जो मद है मद्दे मुत्तसिल है। हुमुल मुमिनून यहाँ पर हमजा साकिना है, वाव की शक्ल में झटका लगेगा। नू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हक कौफ उर्फ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर दो ज़बर है, वक्फ़ की सूरत में एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। इस तरह से वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। लहुम यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, तो मीम मीम के साथ मुदगम हो जाएगा, इसको इदगाम शफवी कहते हैं। गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। गैन हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉक ऊपर ज़बर, रॉक पुर पढ़ेंगे। तू में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर है, रॉक को बारीक पढ़ेंगे। कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और तनवीन में इख्फा हो रहा है, इख्फा करेंगे। करीम रा के नीचे ज़ेर है, रॉक को बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।